Hello guys, this is Dr. Suyash Chavan, All India Rank 56, presenting a video on UPSC Mains preparation. बहुत से एस्पिरेंट्स ये पूछ रहे थे कि मेंस की प्रिपरेशन कैसे करें. So here is a brief overview of UPSC Mains preparation. This is not a detailed strategy, just an overview. These are the contents of this video. Senior aspirants can jump to the relevant portions and skip what they already know. But if you have a little time, please stay with me. You might just gain a few good points to improve your preparations. Newcomers, please ध्यान से देखिए. इस वीडियो के कंटेंट्स इस प्रकार रहने वाले हैं: यूपीएससी मेंस मार्क्स, टाइम डिविजन्स, टाइम टेबल, रिविजन एंड एज आर, ऑप्शनल, जीएस, एसए, करंट अफेयर्स एंड आंसर राइटिंग. Now let's take a look at the marks division in the UPSC mains. As you all must be knowing, UPSC exam is of 2025 marks, out of which mains consists of 1750 marks, and the unpredictable personality test or interview consists of 275 marks. I want you guys to focus on the essay and GS4 papers because these papers are often neglected and these are going to be your performance boosters. Also, please note that UPSC mains papers consist of the GS papers divided into 4 papers, 1, 2, 3 and 4, and 2 papers of optional. Paper 2 and paper 3 mostly consist of current affairs. दोस्तों, जब भी आप UPSC मेंस की स्टडी करते हो, आपका टाइम 4 चीज़ों में डिवाइड होता है. Your mains preparation gets divided into 4 parts: your optional, general studies, current affairs and answer writing. Now the biggest task is how you manage these parts. ये प्रॉब्लम हर एस्पिरेंट को फेस करनी पड़ती है. Whether you should do all these parts daily, ये पार्ट्स रोज करें, or you should give specific time, specific number of days to each part. This is the confusion. What parts should you read early in your preparation? What parts should you reserve towards the end? When and how are you going to revise everything? So these answers need to be found out early in your preparation so that आपकी preparation आप planned तरीके से कर सको. Now let's see how we can manage those 4 parts. Bear with me for the next 2 to 3 minutes. Many aspirants struggle in time management. So let me give you a rough daily timetable. Those who are good at time management exercise can move the video forward. सपोज आपके पास 12 to 15 आवर्स हैं. दिस इज़ एप्लीकेबल टू दोज एस्पिरेंट्स जो कोई जॉब नहीं कर रहे और जिन्होंने फुल टाइम यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए डेडिकेट किया हुआ है. सो इफ़ वी डिवाइड दीज 12 to 15 आवर्स, यू गेट 1 hour इन द मॉर्निंग. यू कैन कीप 1 hour इन द मॉर्निंग फॉर रिविजन आवर. इसका इंपॉर्टेंस मैं अगली स्लाइड में बताऊँगा. 3 hours बिफोर द लंच फॉर ऑप्शनल. देन आफ्टर योर लंच you can take an hour nap and then reserve 3 hours for general studies, 2 hours in the evening for your leisure activities like your gym, your hobbies, 2 hours before your dinner for general studies again. You can continue with your general studies which you have read in the afternoon. Or what you can do is the 6 to 8 hours from morning till the evening you can give completely to general studies or to your optional and then repeat it on alternate days or after a few days. मतलब कुछ दिन जनरल स्टडीज़ कर लिया, फिर कुछ दिन ऑप्शनल कर लिया. ऐसा भी आप कर सकते हो. इन दैट केस आपको 6 से 8 घंटे जनरल स्टडीज़ या ऑप्शनल के लिए मिलेंगे. या तो आप ऐसा करो या फिर जितना टाइम आपके पास है इवनिंग तक उसको डिवाइड कर लो. 3 hour फॉर ऑप्शनल एंड 5 hours फॉर जनरल स्टडीज़. आफ्टर योर डिनर you can reserve 3 hours for current affairs and answer writing. Now why have we kept current affairs and answer writing towards the end of the day? बहुत से लोगों को न्यूज़पेपर सुबह पढ़ने की आदत होती है और आंसर राइटिंग आप दिन भर में कभी भी कर सकते हो. बट दिस इज़ वॉट आई फॉलोड. रात में पढ़ने का मन नहीं करता बट रात को आप आंसर्स लिख सकते हो एंड यू कैन कंबाइन योर आंसर राइटिंग विथ योर करंट अफेयर्स. So that's why I've kept answer writing after your dinner, जब पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता. The end of your day has to be with an edge hour.
इसको मैं एज आर क्यों बोलता हूँ वो मैं आगे बताऊँगा. हाफ एन आवर यू शुड गिव एज योर एज आर. इन ऑर्डर टू सेव टाइम एंड यूज़ इट एफिशिएंटली, आप जब भी लंच या डिनर कर रहे हो तब राज्यसभा टीवी के वीडियोस देख सकते हो, अनअकैडमी के वीडियोस देख सकते हो, स्टडी आईक्यू, मृणाल, ऐसी जो वेबसाइट्स हैं इनके वीडियोस देख सकते हो. बट यू नीड टू प्लान कि इस हफ्ते हमें कौन से वीडियोस देखने हैं या इस दिन, आज के दिन हमें कौन से वीडियोस देखने हैं. संडेज़ को यू कैन प्रैक्टिस योर एसेज, क्योंकि एसेज प्रैक्टिस करने के लिए अलग से टाइम नहीं निकाल पाएंगे. सो रिजर्व योर संडेज़ फॉर एसेज. एंड हफ्ते भर में जो पेंडिंग काम है उसको भी संडेज़ को करना है. गाइज़, ऐसे बहुत से दिन आएंगे जब आपका पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, उसको मैं डल डेज बुला रहा हूँ यहाँ पे. सो ऑन दोज डेज यू कैन ईदर सी वीडियोज़ इन वेबसाइट्स पे, अदरवाइज़ यू कैन टेक अ डे ऑफ. आपने एक दिन ऑफ ले लिया और ख़ुद को री एनर्जाइज कर लिया तो उसकी वजह से आपके रैंक में कोई कमी नहीं होने वाली है. सच डेज आर नेसेसरी. In the month end, you have to reserve 3 to 4 days to study your monthly current affairs. Monthly current affairs आप विजन IAS के पढ़ सकते हो या IAS बाबा या Insights on India के पढ़ सकते हो. So this first box gives you a rough timetable if you have 12 to 15 hours in a day. Now एक क्वेश्चन बहुत से लड़के पूछते हैं, स्पेशली न्यू कमर्स, वेदर दे शुड राइज अर्ली और स्टे अवेक लेट. तो आई एम अ डॉक्टर और आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि ऑल्दो इट्स अ पर्सनल चॉइस बट राइजिंग अर्ली इज़ अ गुड हैबिट एंड उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा. सपोज यू वेक अप एट 7 or 7:30, सो 8 you get ready by 8 to 9, that 1 hour you can utilize as your revision hour. 9 to 12, 3 hours, give it to your optional. 12 to 1 you can have your lunch करते समय आपने राज्यसभा टीवी देख लिया, फिर 1 घंटा थोड़ा सा रिलैक्स कर लिया, नैप ले लिया. देन 2 to 5, 3 hours, give it for your GS. 5 to 7 लीजर एक्टिविटी, जो भी हॉबी डेवलप करनी है, जो एक्सरसाइज करनी है वो कर लो. दिस इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर योर पर्सनैलिटी टेस्ट, so you can develop that good habit. Then after coming back 7 to 9, give it to your GS again. So total 5 hours to general studies per day. Then 9 to 10 have your dinner. उस टाइम पे भी आप अनअकैडमी के वीडियोस देख सकते हो, स्पेशली द डेली न्यूज़ एनालिसिस ऑन अनअकैडमी और स्टडी IQ. फिर आपने डेली न्यूज़ एनालिसिस एक बार देख लिया तो फिर 10 o'clock to 1 AM you can see you can read current affairs and do answer writing practice. क्योंकि रात में और ज़्यादा पढ़ाई नहीं होगी तो उस टाइम पे न्यूज़ पढ़ना वुड बी अ लिटिल मोर इंटरेस्टिंग एंड आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हो. एंड इन दी एंड 1 to 1:30 वुड बी योर एज आर. ओके, लेट्स सी व्हाट इट इज़. अब जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या क्लास के मारे स्टूडेंट्स हैं, उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, उनका टाइम बहुत डिवाइड हो जाता है. तो सेल्फ स्टडी के लिए उनके पास सिर्फ 4 to 6 hours बचते हैं. तो वो लोग क्या करें? इन माई ओपिनियन दे नीड टू गिव डेली करंट अफेयर्स 2 hours. ये आप अपने हिसाब से कभी भी एडजस्ट कर सकते हो. एंड देन ईदर जनरल स्टडीज़ या ऑप्शनल, या फिर जो क्लास आप कर रहे हो उसकी रिवीजन के लिए 3 से 4 घंटे निकालने हैं. वीकेंड्स पे आपको ऐसे रिवाइज करना है एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है एंड डू ऑल द पेंडिंग स्टफ. अगेन बिफोर स्लीप हाफ एन आवर एज आर करके देना है आपको. लंच एंड डिनर के टाइम पे जब भी आपको टाइम मिले RSTV, अनअकैडमी, स्टडी IQ, मृणाल, ये वेबसाइट्स देखनी है. प्लान तरीके से देखना है, हैप हैज़ार्ड तरीके से आज जो मन कर रहा है वो उठा के देख लिया, ऐसा नहीं करना है. अगर आप मृणाल के इकोनॉमी के वीडियोस देख रहे हो तो कंटिन्यूस उसको देखते रहो और आपके लंच के बाद स्पेयर 5 to 10 minutes एंड उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो निकाल लो. अगर आपने लंच के दौरान RSTV का वीडियो देखा है, कोई बिग पिक्चर देखा है या कुछ भी देखा है, तो 5 to 10 minutes निकालो और उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर लो. ड्यूरिंग योर ट्रैवलिंग या जब भी आपका टाइम पास हो रहा हो, क्लासेस जा रहे हो, क्लासेस के बाहर बहुत लाइन लगी हुई होती है, तब आप गप्पे मारते हो, या फिर जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है उस टाइम पे रिवाइज़ करना स्टार्ट कर लो, क्योंकि आपको अपना टाइम एफिशिएंटली यूज़ करना ही पड़ेगा.
बिकॉज यू आर कम्पीटिंग विद दोज गाइज जो 12-15 घंटे बैठ के पढ़ रहे हैं. तो इस टाइम पे स्टार्ट आस्किंग योर सेल्फ कि हमने क्या पढ़ा है और वो रिवाइज करना स्टार्ट कर लो. नाउ गाइज हमने बोला था कि यू शुड स्टार्ट योर डे विथ अ रिविजन आवर. अब इसका इंपॉर्टेंस मैं बताता हूँ. दिस इज़ अ स्मॉल इम्प्रोवाइजेशन. नाउ यू टेल मी व्हाट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन. It's revision, right? What's the most neglected part of the preparation? It's revision. We know that everyone forgets. हम भूल जाएंगे, जो भी पढ़ रहे वो याद नहीं रहेगा. बट ये याद रहे इसके लिए हम क्या करते हैं? रिवीजन के बिना कुछ नहीं होने वाला, ये सबको पता है. बट फिर भी हम रिवीजन को निगलेक्ट करते हैं. वी कीप इट एट द एंड ऑफ द डे या एट द एंड ऑफ द ईयर. सारा रिवीजन हम एंड में करने वाले होते हैं. But is that a good strategy? Absolutely not. Be smart. Start your revision right from week 1. As soon as you wake up, जैसे ही उठते हो, ask yourself what important have you read yesterday or before a few days. पहले तो यार यही याद नहीं आएगा कि क्या पढ़ा था. फिर उसके बाद try to remember the important points. You might not remember them. Check them from your book. Revise it. It will act as your first revision. तो उठते ही आपने खुद से पूछ लिया, वो आपको याद नहीं आया. फिर आपने ट्राई किया, कुछ पॉइंट्स याद आ गए. आपने अभी अभी पढ़ा था तो आप वापस जाके वो बुक खोल सकते हो और उसमें से रिवाइज़ कर सकते हो. जब आप फटाफट वो रिवाइज़ कर लोगे जो आपने बस 2-3 दिन पहले ही पढ़ा था, यू विल फील हैप्पी दैट यू हैव रिवाइज्ड इट विद इन टाइम. ये अभी याद नहीं आ रहा था तो एग्ज़ाम तक क्या खा के याद रहता. अच्छा हुआ आज ही देख लिया. दैट वुड बी द फीलिंग. और इस पॉजिटिव फीलिंग के साथ आप पूरा दिन पढ़ोगे. अब आज के दिन जो भी पढ़ रहे हो उसमें भी बहुत सारा डेटा आता जाएगा, तो यू विल फील कि यार ये सब कैसे याद रहेगा. बट यू कैन रीअश्योर योर सेल्फ कि 2-3 दिन बाद मैं अपने रिवीजन आवर में इसको फिर से रिवाइज़ करूँगा. सो आज जो पढ़ रहे हो उसको आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ोगे, कंपाइल करोगे, मेमोनिक्स बनाओगे उसके, so that you'll be able to revise it in 1 hour itself. So this will make your reading more efficient and it will ensure कि जो आप पढ़ रहे हो उसकी बार बार रिवीजन होती रहे. दिस वे आपका लॉन्ग टर्म रिवीजन भी प्लान हो जाएगा और आपको एंड के मंथ्स में बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी. सो गाइज डोंट डिले योर रिवीजन टू द एंड ऑफ द डे और एंड ऑफ द ईयर. अगर आप ऐसा करोगे तो हो सकता है, भगवान ना करे, कि आपको एक पूरा साल जो पढ़ा है उसको रिवाइज करने में डालना पड़े. Now coming to the edge hour. Now you guys tell me what makes the difference between those who are selected and those who miss it by a little margin. बहुत ज़्यादा मार्क्स का डिफरेंस नहीं होता दोस्तों. बहुत कम मार्जिन से डिफरेंस पता चलता है कि कौन सिलेक्ट हो रहा है और किसका सिलेक्शन नहीं हुआ. So these things are your quotes, your numericals, the government schemes, diagrams. ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आगे जाके एक बड़ा डिफरेंस बनाती है. So if this is what takes you to the top 100 ranks, when are you planning to practice it? Which week, which month? ये अलग से आप कब करने वाले हो? So let me tell you, ऐसा कोई मंथ या ऐसा कोई वीक नहीं आने वाला. So आपके पास वो एज भी नहीं रहेगा कंपटीशन के ऊपर, एंड देयरफॉर यू विल नॉट गेट इनटू दोस टॉप 100 रैंक्स. सो एवरी नाइट बिफोर स्लीपिंग स्टार्ट गिविंग योरसेल्फ हाफ टू 1 hour फॉर रिवाइजिंग योर कंपाइलेशंस of government schemes, numericals, quotes, diagrams, maps. अगर आप ये करने लगोगे तो it will strengthen whatever you are compiling, right? और वो आपको याद रहने लगेगा. एंड जब भी आप दिन भर पढ़ते रहोगे तो वो कोरिलेट होता रहेगा. यू विल सी द डिफरेंस विद इन अ फ्यू डेज. सो गाइज दीज 2 improvisations have helped me and I urge you कि आप भी अपनी प्रैक्टिस में इसको लाओ. सुबह 1 घंटा रिवाइज करना स्टार्ट करो और सोने से पहले एटलीस्ट 15 मिनट्स जो चीज़ें आपको एक एज देंगी, जो चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देंगी, उनको पढ़ना स्टार्ट करो अभी से. Now coming to the optional forms an important part of your mains preparation. 500 मार्क्स का ऑप्शनल होता है, 2 पेपर्स होते हैं. एंड सबसे बड़ी कन्फ्यूजन न्यू कमर्स के लिए होती है एंड इवन अमंग अ फ्यू सीनियर एस्पिरेंट्स कि डिड आई चूज़ माई ऑप्शनल राइटली या कौन सा ऑप्शनल चूज़ करूँ. सो आई थिंक देयर आर 5 क्राइटेरियाज.
पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है वेदर इट्स अ स्कोरिंग ऑप्शनल. Check the scores in the past 3 years. If they are above 300, then you can take that optional. The average score, कुछ लोगों को बहुत कम आएंगे, कुछ को बहुत ज़्यादा आएंगे, बट ऑन एन एवरेज क्या उस ऑप्शनल में 300 से ऊपर स्कोर लाया जा सकता है आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 500 मार्क्स. ये देखो. देन डू यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपको ये बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, बहुत दिन पढ़ना पड़ेगा. डज इट हेल्प इन योर जनरल स्टडीज़. फॉर एग्जाम्पल मेरा जो ऑप्शनल था मेडिकल साइंस, उसका और जनरल स्टडीज़ का कुछ खास रिलेशन नहीं था. तो अगर मैं मेडिकल साइंस पढ़ता था तो उसका बेनिफिट मुझे जनरल स्टडीज़ में नहीं होता था. सो वो टाइम यूटिलाइज नहीं कर पा रहा था मैं अच्छे से. बट इफ़ योर स्टडी ऑफ ऑप्शनल एंड जनरल स्टडीज़ ओवरलैप्स, तो दैट इज़ एन एडवांटेज. तो वो थोड़ा सा देख लो कि अगर आपके पास 2-3 चॉइसेस है तो ऐसा ऑप्शनल लो जो ओवरलैप करे जनरल स्टडीज़ के साथ. दैट बीइंग सेड, योर फर्स्ट क्राइटेरिया शुड बी उसमें स्कोर्स अच्छे आने चाहिए इन द पास्ट 3 years. देन हैव यू रेड इट इन योर ग्रेजुएशन. अगर आपने पढ़ा हो तो आपको यहाँ पे एडवांटेज होगा. यही सोच के मैंने मेडिकल साइंस लिया था, बट लेट मी टेल यू कि उससे मुझे कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ. उसमें मुझे बाकी टॉपर्स के मुकाबले 30-40 मार्क्स कम ही आए हैं. So you have to choose your optional wisely. Just because you have read it in your graduation, it shouldn't be a part of your mains preparation. पहले देखो उसमें स्कोरिंग अच्छी होती है क्या, फिर देखो कि वो आपके जीएस में मदद करता है क्या. एंड लास्टली वेदर यू हैव गुड स्टडी मटेरियल एंड क्लासेस अवेलेबल फॉर दैट पर्टिकुलर ऑप्शनल. सो दिस शुड डिसाइड कि आप कौन सा ऑप्शनल ले रहे हो. द नेक्स्ट थिंग इज व्हेन शुड यू रीड योर ऑप्शनल. गाइज आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट ईच ऑप्शनल और उसके डिटेल्स यहाँ पे नहीं बताऊँगा. दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू. सो व्हेन शुड यू रीड योर ऑप्शनल. स्टार्ट रीडिंग योर ऑप्शनल एज अर्ली एज पॉसिबल. प्रिफरेबली फर्स्ट मंथ से स्टार्ट करो. इफ़ यू फिनिश इट अर्ली, आप उसको रिवाइज कर पाओगे, आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर पाओगे. जल्दी स्टार्ट करने का और एक फ़ायदा है कि इन द लैटर पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, अगर आप ऑप्शनल पढ़ रहे हो तो वो आपकी जनरल स्टडीज़ को हेल्प करेगा, ये ज़रूरी नहीं है. सो इट काइंड ऑफ बिकम्स डिफ़िकल्ट टू मैनेज बोथ ऑप्शनल एंड जनरल स्टडीज़. सो इट्स बेटर कि पहले ऑप्शनल को ख़त्म कर दो. मेक श्योर यू स्टिक टू द सिलेबस एंड नोट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. एक बार आपने उन 5 क्राइटेरिया से ऑप्शनल चूज़ किया तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो. ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, पिछले 5 ईयर्स के क्वेश्चंस देखने हैं. फिर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चलेंगे, उन टॉपिक्स पे फोकस करना है और सिलेबस के अंदर जो है उतना ही पढ़ना है. अगर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आता है तो वो सबके लिए डिफ़िकल्ट होता है. सो जस्ट स्टिक टू योर सिलेबस. Ideally finish gathering notes, compilations and one reading at least 2 months prior to your prelims. Prelims की जो डेट है उसके 2 महीने पहले तक एक रीडिंग ख़त्म हो, ये ट्राई कीजिए प्लीज़. सो दैट वो जो 2 महीने हैं वो आप ऑप्शनल वगैरह ये सब चीज़ें ना करो, आप सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करो. अब ये कैसे पढ़ना है, तो एक स्ट्रैटेजी ये होती है कि कुछ महीने दे के ऑप्शनल ख़त्म करना है, या फिर दूसरी स्ट्रैटेजी होती है कि एवरी डे यू गिव 2 to 3 hours एंड फिनिश योर ऑप्शनल ओवर अ पीरियड ऑफ 5-6 months. माई रिकमेंडेशन इज़, जो न्यू कमर्स है, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, वो लोग स्टार्टिंग के 1-2 महीने ऑप्शनल प्रिपरेशन के लिए डेडिकेट करें, सो दैट उस ऑप्शनल का जो डिफ़िकल्ट पार्ट है वो 1 या 2 महीने में कवर हो जाए. पूरा तो कवर नहीं होगा बट एक मेजर पोर्शन डिफ़िकल्ट पार्ट कवर हो जाएगा. उसके बाद स्टार्ट गिविंग 3 hours डेली. जैसे हमने हमारे रफ टाइम टेबल में देखा था, वी यूज़ टू गिव मॉर्निंग के 3 hours ऑप्शनल के लिए. तो उन 3 hours में आप उसको रिवाइज कर सकते हो, बचा हुआ पार्ट पढ़ सकते हो एंड उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सकते हो. Now the question is, why have we dedicated 1 to 2 months early? So as I said, later on in your preparation, optional becomes a hurdle in your GS preparation. तो इसको जितना जल्दी ख़त्म कर लो उतना सर से टेंशन ख़त्म हो जाएगा. Why 3 hours daily? Because then it allows you to stay in touch with your optional. जैसे मेरा ऑप्शनल मेडिकल साइंस वॉज हाईली वोलाटाइल, वो बिल्कुल याद नहीं रहता. तो अगर एक बार पढ़ के छोड़ दिया तो इतना इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होता रहता है कि वो 1 महीने में ही भूल जाओगे. सो उससे बेटर है कि रोज़ अगर 3 घंटे आप उसको पढ़ रहे हो, उसको दे रहे हो, तो कुछ ना कुछ पार्ट रिवाइज होता रहेगा. सो इट्स बेटर टू गिव 3 hours डेली.
इफ़ यू आर रीडिंग इट आफ्टर योर प्रिलिम्स और मेंस के बीच अगर ऑप्शनल पढ़ रहे हो तो ऑप्शनल को ज़्यादा टाइम पहले के 1-1.5 महीने में दे दो, ऑप्शनल ख़त्म कर लो, उसकी रिवीजन ख़त्म कर लो, और उसके बाद डेली बेसिस पे 2 to 3 आवर्स निकालो सो दैट यू कैन रीड इट, रिवाइज इट, एंड यू कैन प्रैक्टिस आंसर राइटिंग. Now guys, coming to GS plus essay. Now general studies plus essay comprise of 1250 out of 1750 marks. तो एक बहुत बड़ा पोर्शन है. Your target marks in general studies 4 papers should be minimum 100 marks per GS paper. ये टारगेट होना चाहिए. और essay में आपको 140 to 150 मार्क्स लाने हैं हर पेपर में. Now this, if you are able to achieve this, it will reduce the dependence on that uncertain, unpredictable personality test. But the question is, which GS paper should you read first? GS 1, 2, 3, 4 में से पहले क्या पढ़ें? When should you start practicing your essays? And इसका टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? बहुत बार आपने सुना होगा कि जो लोग पढ़ने लगते हैं वो अगर GS 1 पढ़ रहे हैं तो उनको GS 2 का टेंशन आता है, अगर हम GS 3 पढ़ रहे हैं तो 4 का टेंशन आता है. सो इट कीप्स ऑन हैपनिंग. तो इसको कैसे हैंडल करें? नाउ सी यू नीड टू प्लान इट वाइजली. टाइम उतना ही है सबके पास, बट अगर हम उसको वाइजली प्लान करते हैं तो वी कैन ब्रिंग आउट द मोस्ट आउट ऑफ आवर टाइम. स्टडिंग फॉर GS, उसमें GS 2 एंड GS 3 अगर आप पहले लेते हो तो इट्स लाइक क्विक सैंड, जिसे दलदल कहते हैं. फंस गए तो बाहर आना मुश्किल है उसमें से. सो व्हाट यू डू इज़, आपकी प्रिपरेशन के स्टार्टिंग के कुछ वीक्स में लक्ष्मीकांत एंड इकोनॉमी 11th एंड 12th NCERTs ख़त्म कर लो. दैट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू, क्योंकि ये किए बिना आपको करंट अफेयर्स समझ में नहीं आने वाले. करंट अफेयर्स में बहुत सी टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो एज अ लेमैन आप पढ़ोगे तो आपके समझ में नहीं आएगा. तो पहले लक्ष्मीकांत एंड इकोनॉमी 11th 12th NCERT ख़त्म कर लो. Reading current affairs every day or every month is going to cover a bulk of your GS 2 and GS 3. अगर आप रोज current affairs पढ़ रहे हो तो GS 2 and GS 3 cover हो जाएगा. So you don't have to worry about GS 2 and GS 3 initially. So what you do is, मेंस के लिए जब स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन, पहले तो लक्ष्मीकांत एंड 11th 12th NCERT ख़त्म कर लो. उसके बाद जैसे हमारा डेली टाइम टेबल था उसमें हमने GS के लिए 5 आवर्स दिए थे, तो उन 5 आवर्स में स्टार्ट विद GS 1 एंड GS 4. नाउ दिस अप्लाइज टू दोज न्यू कमर्स हु आर नॉट ज्वाइनिंग एनी क्लासेस, जो फ्री है, जिनके पास 12 से 15 घंटे हैं, तो वो एक 5 घंटे इसको दे सकते हैं. नाउ GS 1 कैन बी कवर्ड अलॉन्ग विथ प्रीलिम स्टडी, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर उसके बुक्स सेम है प्रीलिम्स एंड GS 1 के. सो यू कैन गिव 45 days ऑलमोस्ट एंड यू कैन कवर GS 1 प्रीलिम्स के लिए एंड मेंस के लिए. उसके बाद लगभग 30 days दे के GS 4 कवर कर लो एंड कीप 15 days एक्स्ट्रा. सो दैट मीन्स अगर आप 3 months देते हो तो उसमें GS 1 एंड GS 4 कवर हो जाएगा. Now you got to remember that in our rough timetable we had given 3 hours for optional, तो वो optional हम करते जा रहे हैं. Then we had 3 hours in the evening for current affairs, जो हम रात को करने वाले हैं. एंड वी हैव 5 hours फॉर जनरल स्टडीज़. तो ये 5 घंटे जो है, अगर 3 महीने आप पढ़ते हो तो उसमें पहले GS 1 कवर कर लीजिए और उसके बाद GS 4 कवर कर लीजिए. जो आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो उसमें GS 2 GS 3 अपने आप कवर हो रहा है. Now once you are done with GS 1 and GS 4, the feeling that you have already covered 2 important GS papers is going to increase your confidence. बहुत अच्छा लगेगा आपको 3 महीने बाद जब आप वापस देखोगे तो आपका GS 1 ख़त्म हो गया है, आपका GS 4 ख़त्म हो गया है, आपने ऑप्शनल अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाएगा विद इन जस्ट 3-4 months ऑफ स्टडी. नाउ व्हाट यू डू इज स्टार्ट सॉल्विंग GS 1 एंड GS 4 मेंस क्वेश्चंस. ये क्वेश्चंस आप कहाँ से सॉल्व करोगे? प्रीवियस ईयर के जो UPSC के क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें से सॉल्व करो, क्योंकि GS 1 के मोस्टली स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं, वो चेंज नहीं होंगे. तो मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब चेंज नहीं होगी, तो यू कैन सॉल्व इट. एंड यू कैन ऑल्सो सॉल्व इट फ्रॉम इनसाइट्स ऑन इंडिया सिक्योर इनिशिएटिव. ओके, अब जब आपने GS 4 ख़त्म कर लिया है तो उसमें जो एथिकल एस्पेक्ट्स हैं वो एथिकल एस्पेक्ट्स आप अपने एसेज में भी ला सकते हो.
गाइस एसए और जीएस के पेपर्स में डिफरेंस ये है कि एसए जो है वो दिल को छू लेना चाहिए उसने एग्जामिनर के, तो वो तभी आएगा जब आप उसमें कुछ एथिकल, कुछ अच्छी बातें, कुछ कोट्स ये सब ऐड करोगे। तो दिस essay is going to seem really good if you add GS4 points in it. So वो आप ऐड कर सकते हो, वो एक एडवांटेज है। ऐसे की प्रिपरेशन हमें स्टार्टिंग के मंथ से ही शुरू कर देनी है। नाउ अ लॉट ऑफ पीपल से कि स्टार्टिंग में तो नॉलेज नहीं होती तो हम कैसे करें। सो आई टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट स्लाइड। बट रिमेंबर कि अगर आप ऐसे को टाइम नहीं दे पा रहे हो तो संडेज ऐसे के लिए स्पेयर करना है। प्लीज़ गाइज ऐसे को निगलेक्ट मत करो। Once you are done with your GS1, GS4 and simultaneously you are doing your current affairs, your optional and your essay जैसे कि हमने प्लान किया है, उसके बाद फिर GS2 एंड GS3 ले लो। आपका बहुत सारा करंट अफेयर्स अब तक का हो चुका होगा एंड देन यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग द अदर पार्ट्स ऑफ GS3 एंड GS2 एंड GS3। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि जीएस को कैसे मैनेज करना है। गाइज पहले GS1 एंड GS4 कर लो प्लीज़। GS2 GS3 बहुत टेम्पटिंग है बट उसमें फंस जाओगे। कमिंग टू द एसेज, ऐसे निगलेक्ट करोगे तो आपको एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट लगने वाला है, पक्का ध्यान में रखो। सम पीपल थिंक दैट जीएस प्रिपरेशन अलोन कैन सफाइज फॉर एसेज, कि अगर मैं जीएस कर रहा हूँ तो वही लिख के आ जाऊँगा। बट गाइज ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। पीपल ऑल्सो प्रोक्रेस्टिनेट देयर ऐसे प्रैक्टिस, लेट कर देते हैं ऐसे की प्रैक्टिस को, ये कहते हुए कि हमारे पास तो नॉलेज ही नहीं है। तो अगर नॉलेज नहीं है तो पहले पढ़ो वो एसेज। इफ़ यू स्टडी द यूपीएससी ऐसे पेपर्स फॉर द प्रीवियस 5 to 10 ईयर्स, यू विल गेट अ रफ आइडिया कि कौन से टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं। तो ये कॉमनली रिपीटेड जो टॉपिक्स हैं लाइक विमेंस इशू, एजुकेशन, हेल्थ, एग्री, साइंस टेक, एनवायरनमेंट, फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी, सोशल इश्यूज, ये सब जो टॉपिक्स हैं, ऐसे जो टॉपिक्स हैं उनको इकट्ठा कर लो, उनकी एक लिस्ट बना लो। नाउ यू हैव टू गिव 1 वीक टू ईच टॉपिक। फिर उस टॉपिक पे जो ऐसे आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में वो देख लो। 15 मिनट्स ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। ये कैसे करते हैं? रीड अ टॉपिक, थिंक ओवर इट फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव्स फॉर 15 मिनट्स। हर तरीके से उसके बारे में सोचना है। मैं एक अलग से ऐसे के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा, बट अभी बस इसको सुन लो। थिंक ओवर दैट टॉपिक, जॉट डाउन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑन अ रफ पेपर। बस हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स लिखनी है कि आप क्या क्या लिखोगे। देन थिंक ओवर इट्स इंट्रो एंड कंक्लूजन एंड देन कंपेयर दैट एसे विथ मॉडल एसेज। अब आप ये भी कर सकते हो कि टॉपर्स के ऐसे की बुकलेट ऑनलाइन या ऑफलाइन अवेलेबल होती है, तो उसका टॉपिक देखो, उसके बारे में सोचो, पॉइंट्स निकालो एंड देन कंपेयर योर पॉइंट्स विद दैट ऑफ द टॉपर। तो ऐसे आप कंपेयर कर सकते हो। गाइज रिजर्व योर संडेज फॉर ऐसे, ओके। हर संडे को एक टॉपिक चूज़ करना है। सपोज आपने इस संडे एग्रीकल्चर चूज़ किया है तो एग्री से रिलेटेड इंट्रोडक्शंस, कंक्लूजन्स, कोट्स, न्यूमेरिकल्स, ये सब आपको इकट्ठा करने हैं, राइट। देन एग्री से रिलेटेड जो एसेज प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको पढ़ना है। उसमें से एक ऐसे अगर आपके पास कोई मॉडल आंसर हो तो उसमें से देख सकते हो, या फिर आप खुद लिखने का ट्राई कर सकते हो यूजिंग योर ओन इंट्रो एंड कंक्लूजन्स। अब ये इंट्रो एंड कंक्लूजन्स कैसे, कहाँ से आप लेने वाले हो, ये मैं बाद में बताऊंगा, ओके। सो दैट इज़ हाउ यू प्रैक्टिस योर एसेज। कीप योर संडेज फॉर एसे प्रैक्टिस। उसके कुछ सोर्सेस भी है, वो मैंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं, वो आगे मैं बाद में डिटेल में समझा दूंगा आपको। एंड थ्रू आउट योर जीएस प्रिपरेशन, और जब जो रोज़ आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो उसमें जब भी इन टॉपिक्स पे कोई चीज़ आती है तो उसको उठा के कॉपी पेस्ट अपने एसे के स्पेशल जो नोट्स आप बना रहे हो उसमें ऐड कर देना है। वो नोट्स आप ऑफलाइन बनाओ या ऑनलाइन बनाओ, डजेंट मैटर, बट उसमें ये इन्फॉर्मेशन ऐड होती रहनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आप अभी से करते हो, हर संडे ये करते जाते हो, तो आपके ऐसे टॉपिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। इफ़ यू कीप इट फॉर द टाइम बिटवीन योर प्रीलिम्स एंड मेंस, आपके पास बहुत सी चीज़ें होती हैं करने के लिए। तब जीएस रिवाइज करना है, ऑप्शनल रिवाइज करना है, तब आप ऐसे को इतना टाइम नहीं दे पाओगे। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर एसेज राइट नाउ एंड ट्रस्ट मी, ऐसे प्रिपरेशन ऑल्सो हेल्प्स इन योर जनरल स्टडीज़।
Coming to the current affairs, covering current affairs for mains can be a difficult task. सबसे difficult तो यही चीज़ जाती है कि current affairs कैसे manage करें. Now यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस एक ओवरव्यू बताऊँगा. I'll make a separate video on this also. Follow the conventional method. जैसे हिंदू पढ़ रहे हैं कुछ लोग, बहुत से लोग इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं. आई प्रेफर इंडियन एक्सप्रेस. आपको जो पसंद है वो पढ़ सकते हो. उसको कैसे पढ़ना है उसके यूट्यूब पे वीडियोज़ है, एक बार वो देख लो. मेक कंसाइज नोट्स. ये कंसाइज नोट्स कैसे बनाओगे? सब्जेक्ट वाइज नोटबुक्स में, या फिर अगर आप ऑनलाइन बना रहे हो तो एवर नोट पे बना लो. इफ़ यू आर नॉट मेकिंग नोट्स, डू नॉट रीड द न्यूज़पेपर. कोई फ़ायदा नहीं होने वाला. If you are making notes, your aim should be to be able to revise it in the shortest possible time. जल्द से जल्द रिवाइज होना चाहिए. अगर किसी चीज़ को पढ़ने के लिए आपको 1 घंटा लगाए पहले, तो आप इस बार अपने नोट्स से उसको 5 मिनट में अगर पढ़ पा रहे हो, देन यू शुड से कि आपके नोट्स बहुत अच्छे बन रहे हैं. ओके, सिर्फ रेलेवेंट पॉइंट्स लिखो उसमें, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, रेलेवेंट पॉइंट्स, दैट्स इट. शॉर्ट बनाने हैं. If you find notes making difficult, there is an alternate method. If you find reading the Hindu difficult, उसके लिए एक मेथड है. Watch the daily news analysis. जैसे हम रात के खाने के टाइम पे डेली न्यूज़ एनालिसिस देखने वाले हैं, और खाना ख़त्म होने के बाद एडिटोरियल पढ़ेंगे, और एडिटोरियल पढ़ने के बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे. सो इस सीक्वेंस में हम कर सकते हैं. डेली न्यूज़ एनालिसिस अगर आप देखोगे तो वो एडिटोरियल आपको आसान लगने लगेगा. इफ़ यू फाइंड इट टू टाइम कंज्यूमिंग, स्टॉप डेली न्यूज़पेपर रीडिंग. रोज़ रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना अगर आपको टाइम कंज्यूमिंग लगता है, अगर आपके पास टाइम कम है, तो स्टॉप इट. इट डजेंट मैटर, ट्रस्ट मी. आई वॉज नेवर रेगुलर विथ न्यूज़पेपर रीडिंग, बट आई हैव मैनेज टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स. रीड द डेली करंट अफेयर्स नोट्स बाय IAS बाबा और इनसाइट्स ऑन इंडिया. ट्रस्ट मी, आप अपने खुद के नोट्स उनके नोट्स से कंपेयर करके देखो, आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा. ये डिफरेंस क्यों आता है? बिकॉज दोज नोट्स आर मेड बाय एक्सपर्ट्स एंड दोज पीपल नो कि कौन सी चीज़ उठानी है, यूपीएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है. एज न्यू कमर्स आपके पास वो नॉलेज नहीं होती. सो इफ़ यू फाइंड इट टू टाइम कंज्यूमिंग, आप ये स्टेप फॉलो कर सकते हो. इफ़ यू कांट रीड इट डेली, अगर आप रोज़ रोज़ ये टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो वॉट यू कैन डू इज़ यू कैन रीड मंथली मैगजीन्स बाय विजन IAS बाबा या इनसाइट्स ऑन इंडिया. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, क्या मंथली पढ़ना सफिशिएंट होगा? तो यूपीएससी के लिए कुछ भी सफिशिएंट नहीं होता. आप डेली प्लस मंथली प्लस MCQs प्लस आंसर राइटिंग सब प्रैक्टिस करोगे तब भी कोई गारंटी नहीं है. बट द थिंग इज़, अगर आप थरोली मंथली पढ़ोगे, उसके जो डाउट्स है उसको गूगल सर्च करके इंटरनेट से आप क्लैरिफाई करते रहोगे, तो यू कैन स्कोर गुड मार्क्स. यूपीएससी डजंट केयर वेदर यू रीड द हिंदू रेगुलरली और नॉट. उसके कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको कि आपने हिंदू पूरा साल भर पढ़ा है तो एक्स्ट्रा 20 मार्क्स ले लो, ऐसा नहीं होता. ऑल यू नीड टू डू इज रीड द इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स इश्यूज एवरी मंथ एंड रिवाइज इट. आपका टास्क है इश्यूज कवर करना. अगर वो कवर हो रहे हैं, वेल एंड गुड. द लास्ट थिंग इज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. जैसे हमने रिविजन आर और एज आर ऐसे कुछ इम्प्रोवाइजेशंस किए थे अपने बेनिफिट के लिए, वैसे मैं आंसर राइटिंग में एक 7 days का लैग रखता था. मैं उसका बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ. व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू कंबाइन करंट अफेयर्स विद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. 7 day लैग मीन्स आपने 7 दिन पहले जो पढ़ा है उसके आप क्वेश्चन आंसर्स आज ट्राई करोगे सॉल्व करना. बहुत से लड़के ये करते हैं कि सुबह वो चीज़ पढ़ते हैं और शाम को उसके आंसर्स लिखते हैं. सो इट्स एज गुड एज वहाँ का उठा के आंसर शीट पे लिख दो, न्यूज़पेपर का उठा के आंसर शीट में लिख रहे हैं. उससे क्या फ़ायदा होने वाला है? बस आपकी हैंड राइटिंग प्रैक्टिस हो रही है, आपकी मेमोरी तो टेस्ट नहीं हो रही इसमें. सो what you can do is you can understand the topic, you can try to remember it, और 7 दिन बाद उसको उठा के उसके क्वेश्चन सॉल्व करो. what happens is this will simulate the actual exam condition. आपको ऐसा लगेगा कि यार 7 दिन पहले मैंने ये पढ़ा था, कुछ तो था पर मुझे याद नहीं आ रहा. That's what exactly happens in the exam center. At the exam center, you will also focus and try to remember current affairs in a better way. क्योंकि आपको 7 दिन बाद उस पर क्वेश्चंस लिखने हैं, तो आज आप उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना स्टार्ट करोगे. उसके मेमोनिक्स बनाओगे,
उसको कंपाइल करोगे, शॉर्ट में उसके माइंड मैप्स बनाओगे, फ्लो चार्ट्स बनाओगे, सो दैट यू कैन रिमेंबर इट. सो दैट इज़ हाउ यू फोकस बेटर ऑन योर करंट अफेयर्स. फिर क्या होता है, 7 दिन में वो टॉपिक बार बार रिपीट होता है, उसी के ऊपर बहुत सारे एडिटोरियल्स आते हैं. तो उन 7 दिनों में जब आपके रोज़ के करंट अफेयर्स के टाइम में जब वो पढ़ते रहोगे, तो यू विल हैव गैदर्ड मोर इन्फॉर्मेशन rather than reading it in the morning and then solving its questions in the evening. What you can do is for 7 days you can think over that topic, and at the end of your 7th day, yeah, 10th day, whatever, you'll have more information to write on that topic. So ये कर सकते हो. तो क्या करो, 7 days पहले का इनसाइट्स ऑन इंडिया सिक्योर इनिशिएटिव या IS बाबा उठाओ, खोलो एंड चूज़ द क्वेश्चंस. उसमें 7-8 क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, तो उतना टाइम हमारे पास नहीं होता. सो व्हाट यू कैन डू इज़ चूज़ 4-5 क्वेश्चंस अमंग दैम. तो अगर 5 क्वेश्चंस है तो 5 × 8 40 मिनट्स आपको देने हैं. 40 मिनट्स का टाइम सेट करके 5 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं फटाफट. इफ़ पॉसिबल ऑन A4 साइज पेपर्स, उसको मार्जिन ड्रॉ करके जैसे एग्ज़ाम में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उस पर सॉल्व करना है. एंड देन यू कैन कंपेयर योर आंसर विद द मॉडल आंसर्स गिवन ऑन दीज वेबसाइट्स. यू कैन कंपेयर इट विद अदर कैंडिडेट्स ऑल्सो. एंड अगर आपको कुछ अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं तो उसके ऊपर ऐड कर लो, एंड उन आंसर्स को अपने सब्जेक्ट वाइज नोट्स पे जाके चिपकाओ. फॉर एग्जांपल, आपको हेल्थ इशू में हेल्थ सेक्टर पे यूनिवर्सल हेल्थ या ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, आपने लिखा, उसके पॉइंट्स ऐड कर दिए, एंड देन उसको अपने GS2 के हेल्थ वाला जो सेक्शन है उसमें जाके चिपका दो, या आपके ऐसे के नोट्स हैं उसमें जाके चिपका दो. ओके, सो दैट्स हाउ यू विल फैसिलिटेट योर रिविजन. गाइज, एंड के दिनों में आप क्या क्या रिवाइज करोगे? आपको ऑप्शनल रिवाइज करना है, GS 1 2 3 4 है, आपको ऐसे वाला पार्ट रिवाइज करना है, आप जो टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हो वो रिवाइज करोगे, आपने रोज़ की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की हुई है वो रिवाइज करोगे. इतना मटेरियल हो जाएगा कि आप फाइनली छोड़ दोगे ये सब, एंड जो मेहनत आपने आज की है दैट विल गो इन वेन. तो उससे अच्छा आज ही थोड़े से 2-3 मिनट ज़्यादा डाल दो. अगर आपने अच्छे से आंसर लिखा हुआ है, उसमें पॉइंट्स ऐड किए हुए हैं, तो उसको कंपाइल कर लो आपके सब्जेक्ट वाइज नोट्स में. ओके, थैंक यू गाइज. This was just a brief overview regarding mains preparation. Some of you might be already knowing these things, but there are other aspirants जिनको guidance चाहिए होता है. I hope कि ऐसे aspirants को इससे फ़ायदा हो. I promise you I will make detailed videos on individual topics like current affairs, notes making, essays, etc. Thank you guys. Fight hard, stay focused, and never give up. Jai Hind.